Good morning, students. Today I am going to teach you Geography, Chapter 1st, Class 8th. So, please now ready, take your book and open first chapter. So, we are going to start our first chapter, Resources. What is the meaning of resources? We can see in our house lots of things like a clothes, utensils, bottles, books, table, chair, anything is called a resources. That means anything that can be used to satisfy a need is called a resource. That means when you feel thirsty, you drink water. So water is a resource. When you feel hot, you use fan, cooler, AC for making a cool. So this is also called a resources. When you want to read, but ऐसा बहुत कम होता है. When you want to read, so you use a textbooks. You read. So textbook is a resources. When you feel hungry, you eat a food. So food is also a resources. That means simple the things is that here satisfy your all the needs is called a resources. Okay. Next term is here you can see in a blue one, utility. What is the meaning of utility? The thing that can make any substance to a resources. That means जब कोई भी substance मतलब होता है आपका कोई चीज़ या कोई पदार्थ, जब वो आपका resource बन जाता है, this is called a utility. That means when you feel hungry, then you eat. Without hungry, you can't eat. When you feel thirsty, then you use water for drink. You can't drink water without thirsty. So जब भी आपको कोई चीज़ की नीड होती है तब आप जब कोई चीज़ यूज़ करते हैं, दिस इज कॉल्ड अ यूटिलिटी. Is that clear? Okay. Next one is a value. Every resources has some value. What is the meaning of value? Value means a worth. That means उसकी क्या वैल्यू है. जितने भी रिसोर्सेज आपके आसपास हैं सबकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें किसी प्लेस से आपको गोल्ड निकलता है, ठीक है, किसी लैंड से आपको गोल्ड मिल रहा है, तो गोल्ड जो मिलता है तो वैल्यू किसकी होती है, उस ज़मीन की या उस गोल्ड की. हम उस गोल्ड की वैल्यू मानते हैं, उस गोल्ड की वैल्यू होती है, तो वो क्या है उसकी वैल्यू. बट उस लैंड की भी वैल्यू, बट हम जब मार्केट में सेल होता है तो हम उस लैंड को नहीं देखते, हम उस गोल्ड को लेते हैं और हम उस गोल्ड के लिए पैसे पे करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड अ वैल्यू. सपोज कैन यू इमेजिन योर लाइफ विदाउट वाटर, फॉरेस्ट, एयर या फूड. यू कांट इमेजिन योर लाइफ विदाउट दिस थिंग. सो दिस इज़ अ नीडिटी या बोल सकते हैं हम कि ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, तो इनकी वैल्यू है. बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है. फॉर एग्जांपल सपोज़ इस टाइम लॉकडाउन के टाइम पे, ये कोरोना वायरस के टाइम पे सब लोग बोल रहे हैं कि अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करिए. तो व्हेन यू सेड कि इंक्रीज़ योर इम्यूनिटी बाय थिंग्स या बाय दैट टाइप ऑफ थिंग्स यू यूज़, तो अगर आपको इससे पैसे कमाने हैं, तो अगर आप कोई रेमेडी बनाते हो या आप कोई फूड चार्ट देते हो, तो अगर आपने उसको पेटेंट करा लिया है कि हाँ ये जो मैं आपको दे रहा हूँ रेमेडी या जो आपको मैं फूड डाइट बता रहा हूँ ये मेरे द्वारा दी गई है और इसको आपने पेटेंट करा लिया है, तो उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू भी हो जाती है. दैट मीन्स आपको उससे पैसे मिलेंगे. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ इकोनॉमिक वैल्यू. Now we come to our very important topic is the types of resources. Here are three type of resources you can see. First one is the natural resources, second one is the human made resources, third one is the human resources. So firstly we will discuss about the natural resources. Okay, what is the natural resources? Which is a given by the nature. We can't develop, we can't make this type of resources. For example, air, water, plants, we can't make it. Okay, so see here, this is a free gift given by the nature. ये वो सब चीज़ें हैं जो नेचर ने हमें एज अ गिफ्ट दी है. We can't make this. Okay, so next one is a natural resources. See here, natural resources are classified into different types of groups. First is the level of development, second use, third origin, stock and distribution. Okay, so what is the level of development? Sorry for the interruption. That means हम एग्जाम्पल लेते हैं कोल का. कोल हमने अर्थ से डिग करके निकाला,
उसके बाद उस कोल को हमने यूटिलाइज़ किया, उस कोल से हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी। तो ये क्या है, एक लेवल ऑफ डेवलपमेंट है कि हमने उसको कितना डेवलप करके कितना अपने यूज़ में लाया। सेकंड वन इज़ अ ऑरिजिन, कहाँ से मिला हमको। थर्ड वन इज़ अ स्टॉक, कि हमारे पास कोल का कितना स्टॉक है। और लास्ट वन इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कर रहे हैं। क्लियर? ओके, नाउ कम इन द नेक्स्ट वन इज़ अ एक्चुअल एंड पोटेंशियल। What is the meaning of actual resources? Actual resources, that means which quantity is known. That means वो resources जिनकी quantity हमें पता है कि हमारे पास वो कितनी quantity में हैं. And potential just opposite, जिसकी quantity हमें नहीं पता कि वो हमारे पास कितनी है. For example, हम बात करें sun की energy. Sun energy of sun is called a potential energy, but coal oil is a actual energy. Okay, is it clear? चलो, वी आर moving up to next level. Okay, second one is you can see here abiotic and biotic resources. You already read about this thing in our previous class. Abiotic, that means which type of resources, and abiotic means which type of sources. So biotic is a resources, that means which non-living things, and about resources are non-living things, and about resources is a living thing. For example, plants, animals is a biotic resources, and soil, rock, minerals, all the things is a biotic also. Okay, so next one is given here, non-renewable sources and renewable sources. What is the meaning of renewable sources? That means which we have a unlimited stock. Renewable, that means unlimited stock, or we reuse also. You can see here, he has given a two word which get renew and replenished quickly. That means जिसको हम वापस से यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, और जो ख़त्म नहीं होने वाला है. For example, air. We use windmill. Windmill is a example of a renewable sources. Sun energy is also example of a renewable sources. Just opposite is a non-renewable sources. That means जो हमारे पास लिमिटेड स्टॉक में हैं, जो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाते हैं और जिनको रीयूज़ करना पॉसिबल नहीं होता. फॉर एग्ज़ाम्पल कोल, ऑयल, इनसे जो भी एनर्जी हम यूज़ करते हैं, नेचुरल गैसेस ऑल्सो, ये हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं जो हमारे पास एक लिमिटेड स्टॉक में अवेलेबल हैं. अगर हम इनका मिसयूज़ करेंगे या ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एक टाइम के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे. ओके, सो कम इन नेक्स्ट वन थिंग, ऑन द बेसिक ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी ubiquitous and localized. That means what the meaning of ubiquitous? That means जो आपको हर जगह मिलता है उसे हम बोलते हैं ubiquitous. फॉर एग्जाम्पल एयर. एंड लोकलाइज्ड, दैट मीन्स जो हमें किसी सर्टेन प्लेस पे मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं लोकलाइज्ड. यू कैन सी द एग्जाम्पल हियर कॉपर एंड आयरन ओर. यू कैन सी द ऑल द मेटल्स लाइक कोल, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम. दिस इज़ ऑल्सो अ लोकलाइज्ड. दैट मीन्स इनका एक पर्टिकुलर एरिया है कि ये इसी एरिया में इसी जगह पे ही मिलेंगे. यू कांट फाइंड द एवरीवेयर इज अ मेटल. क्लियर? बट एयर यू कैन फाइंड द एवरीवेयर. Okay, so now we are moving on. Next topic is a human made resources. What is the meaning of human made resources? As you can understand from the heading, human made resources, वो resources जिन्हें इंसान ने बनाया है. फॉर एग्ज़ाम्पल मशीन्स, रोड, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, ये सब चीज़ें जो ह्यूमन ने बनाया है और जो आपके एज अ रिसोर्स वर्क करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. क्लियर? ओके, नाउ कम इन नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ ह्यूमन रिसोर्सेज. ओके, so people can make the best use of nature to create more resources when they have to knowledge, skill and technology to do so. That means पीपल अपनी नॉलेज से, स्किल से या टेक्नोलॉजी के थ्रू जो भी नेचर्स क्रिएट कर रहे हैं उससे उसको रिसोर्सेज में डेवलप करते हैं. फॉर एग्जांपल वी कैन टेक अ सॉल्ट, नमक. सबको पता है कि कहाँ से हमको नमक मिलता है, समुद्र से. ठीक है, ओशन वाटर इज़ अ सॉल्टी. तो वी कैन फाइंड द सॉल्ट फ्रॉम द ओशन, बट वी कांट फाइंड द डायरेक्टली सॉल्ट फ्रॉम द ओशन. तो ये जो ट्रिक है वो ह्यूमन ने निकाला कि उसके वाटर को कंजर्व करो, कुछ टाइम के लिए सन में छोड़ो, उसके बाद दे गॉट द सॉल्ट एंड उसके बाद उसको लेके जाइए, फिल्टर करिए.
क्लीन करिए, देन सॉल्ट इज़ एबल टू यूज़। तो दिस इज़ कॉल्ड अ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे नॉलेज लगा है, ह्यूमन का स्किल लगा है और टेक्नोलॉजी लगा है। तो इससे क्या किया उन्होंने, जो नेचुरल रिसोर्स को कन्वर्ट किया ह्यूमन रिसोर्स में। Here is given the one thing, improving the quality of pupil skill so they are able to create more resources is known as the human resources development. This is also called a HRD. ठीक है, तो ह्यूमन अपने स्किल से, अपने नॉलेज से जो भी आपका रिसोर्सेज है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, उसे हम बोलते हैं HRD, दैट मीन्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके, यू कैन सी हियर डायग्राम ऑल्सो। यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि कहीं पे ड्रॉट आया हुआ है जिससे सारी जो फसल है वहाँ की ख़राब हो गई है। तो व्हाट शी इज़ डूइंग, शी इज़ रीडिंग एंड शी इज़ फाइंडिंग सम सॉल्यूशन। येस, दैट इज इट। उसने क्या किया, उसका सॉल्यूशन फाइंड कर लिया और विलेज में आके पीपल्स को बताया, तो पीपल्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दैट मीन्स अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप एजुकेटेड हैं और आपके पास स्किल है, तो यू कैन सॉल्व द एनी प्रॉब्लम। So now next topic is a conserving resources. A very important thing to understand कि why we need to conserve resources, मतलब हमें resources को क्यों बचाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी का टाइम समर चल रहा है, ऊपर से लॉकडाउन चल रहा है। अगर इस टाइम पे लाइट चली जाए या वाटर सप्लाई बंद हो जाए, तो क्या आप अपनी लाइफ ईज़िली बिता सकते हैं? क्या आप एक दिन बिना लाइट के काट सकते हैं? क्या आप एक दिन बिना पानी के काट सकते हैं? नो, यू कांट। इसलिए हम उस चीज़ को वेस्ट नहीं करें, हम कंज़र्व करें। वाटर और लाइट एक ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें कंज़र्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसका मिसयूज़ करेंगे, वेस्ट करेंगे, तो आपको ही बाद में प्रॉब्लम होने वाली है। सो कंज़र्व कैसे करेंगे? अगर आपको ज़रूरत नहीं है वाटर की, तो उसको अननेसेसरी वेस्ट मत करिए। अगर आप रूम में नहीं हैं, तो जितने भी स्विचेज़ हैं उसको ऑफ़ करिए। अननेसेसरी लाइट का या फ़ैन का, कूलर का, एसी का यूज़ नहीं करिए। तो इस टाइप से हम जो भी अपने रिसोर्सेज उसको कंज़र्व कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ अ रिसोर्सेज कंजर्वेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन? हियर इज़ यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली and giving them time to get renew is called the resources conservation. That means resources को carefully use करना is called a resource conservation. Second is a balancing the need to use a resources and also conserve them for future. That means balance में उसको use करना और future के लिए उनको बचा के चलना, इसे हम बोलते हैं sustainable development. Okay, so next one is here is given some principle of sustainable development. So please read it. Is a very important. Now next one come is here. The future of our planet, of its people, is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. Therefore, it is our duty to ensure that. फ्यूचर के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ गिवन ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज आर सस्टेनेबल। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी रिन्यूएबल सोर्सेज हैं ये सस्टेनेबल हैं। ऑल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व। जितनी भी अपनी लाइफ प्रेजेंट है अर्थ में, इन सबको कंजर्व करके रखिए। द डैमेज ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज। जितना भी हम डैमेज कर रहे हैं नेचुरल थिंग को, इसको कम करिए। फॉर एग्जाम्पल कटिंग ऑफ ट्रीज, वेस्टेज ऑफ वाटर, वेस्टेज ऑफ कोल एनर्जीज, वेस्टेज ऑफ ऑयल, इन सब पे वेस्टेज को कम करिए और इनको कंजर्व करिए। ओके, सो इस चैप्टर में मेन थिंग क्या थी कि हमारे रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, रिन्यूएबल क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं, और हमें इन्हें कैसे कंजर्व करके रखना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सो यू हैव टू रीड अगेन दिस चैप्टर